Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Eid Mubarak. कैसे हैं आप लोग? Hope you all are fine. Alhamdulillah, I'm also perfectly all right. Today, once again, we are here and to continue our studies. Oxford International School GH Campus, International Primary Science 5. See the next slide. In first from syllabus, we are on chapter number 3. Total we have 6 chapter. Chapter number 1, keeping healthy, it's done, completed. Chapter number 2, gases all around, it's also done, completed with exercises. Chapter number 3, changing state of matters. Last week we studied about changes of state that water exists in 3 states: solid, liquid and gas. When water loses heat, it's freezing. Condensation क्या होती है? When water gains heat, melting, boiling point, evaporation and humidity basically हम आज continue करेंगे. Chapter 3 में देखें, changing state of matter. Changing state, it's a title page which I get from the other book or Google. See this state of water and liquid change into solid, then solid came into liquid, and also liquid change into gas. It's already done, explained with experiment. Okay, remember? Show me with thumb, remember? Good. See the next slide. When water exists in 3 different states, solid, liquid, gas, done. Changes of state: when water lose heat, freezing. Condensation, it is the process where water vapor become liquid. It is a reverse of evaporation. Reverse back है ये. Where liquid water become a vapor, जिसमें water जो है वो vapor बनकर उड़ जाता है. When water gains heat, जब water gain करता है heat को, तो melting and boiling points आपके सामने आते हैं. Now we start evaporation. It's a new topic of today's, that is evaporation. Evaporation क्या होता है? Evaporation वो process है, the process by which water change from liquid to a gas vapor. जी, it's very simple, not new because last जो हमारा session था उसमें बहुत सारी चीजें इससे related ही थी, तो ये explained है. आपने देखा होगा कि बाहर बारिश होती है और कुछ गड्ढे होते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है और कुछ ही देर के बाद आपने देखा वो पानी ड्राई हो जाता है. 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, समटाइम 4 घंटे में. इट्स डिपेंड ऑन द वेदर पे डिपेंड करता है. बेसिकली होता क्या है, एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा. once again I am repeating. Evaporation is the process by which water changes from a liquid to a gas or vapor. Evaporation is the primary pathway that water moves from the liquid state back into the water cycle as water vapor. इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें मैं आपको वाटर साइकिल का भी बताऊंगी. वाटर साइकिल का पढ़ने के बाद आपके सब कॉन्सेप्ट्स 110% क्लियर हो जाएंगे. वैसे तो आई नो वेरी वेल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि मैं जो चीज़ पढ़ा रही होती हूँ वो इतने ईजीएस्ट वे में पढ़ा रही होती हूँ कि उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होती. वो और बात है कि सम टाइम यू कांट स्पीक, आप बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, बट कॉन्सेप्ट क्लियर. एवोपोरेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें पानी, वाटर जो है वो एवोपोरेट्स होके स्टीम बन के एवोपोरेट हो जाता है, आबी बुखारात बन जाता है, हवा में मुंतकिल हो जाता है. और यही प्रोसेस जो है ये वाटर साइकिल का भी नाम होता है. इसी में पानी जो है, वाटर जो है वो एवोपोरेट होके बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वाटर साइकिल मतलब कि बारिश की सूरत में वो नीचे आ जाता है, बारिश होती है. Can liquid water change into a gas without boiling? क्या पानी चेंज हो सकता है गैस में विदाउट बॉईल किए हुए? क्योंकि हमने तो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट वीक हमने पढ़ा था कि जब पानी को बॉईल करते हैं और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाता है, ऑन विच टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉलिक्यूल्स बहुत क्विकली मूव करते हैं और वो स्टीम बन के, गैस बन के
एवोपोरेट कर जाता है, उड़ जाता है, गैस बन जाता है। ये पढ़ा था। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कैन लिक्विड वाटर चेंज इनटू अ गैस विदाउट बॉइलिंग, क्या बॉइलिंग के बगैर भी एवोपोरेट हो सकता है, लिक्विड चेंज हो सकता है? अभी देखते हैं भाई, अभी देखते हैं। यस, सबसे पहले तो यस, आंसर इज यस। After some times, the wet clothes will become dry, and the puddle of the water will disappear. Where did the water from the clothes and the puddle go? आपने वो बच्ची के पैरों के नीचे देख रहे हैं, पानी नजर आ रहा है पिक्चर में। ये गीले कपड़े टंगे हुए हैं, गीले है ना, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद ये सूख कैसे जाते हैं? इनमें जो पानी है और ये जो फर्श पे पानी पड़ा हुआ है पैरों में, ये कहाँ गया? Where it's gone, ये कहाँ चला जाता है? The liquid water in the clothes and puddle gained heat from the surrounding and changed into water vapor. जरूरी नहीं है कि हीट चूल्हे से ही मिलेगी, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग में मिलती है। अभी हम शेल्टर में बैठे हुए हैं ना, लाउंज में बैठे हुए हैं, इसी रूम में जाती हूँ तो फील मच बेटर। अगर बाहर जाऊं तो स्टार्ट स्वेटिंग, इतनी गर्मी इन्वायरमेंट में है, सराउंडिंग में इतनी हीट है कि आपकी स्किन बर्न होने लग जाती है। तो पानी क्या चीज है? कुछ भी नहीं। इसलिए ये बच्चे के पैरों के नीचे पैडल में जो पानी है और ये ड्राई क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स हैं, ये एनवायरनमेंट से वाटर जो है वो हीट गेन करता है, हीट लेता है। दोबारा रिपीट करती हूँ, the liquid water in the clothes and paddle gains heat from the surrounding and change into water vapor, and water vapor में change हो जाता है। शहरियार हमारे साथ आए, शहरियार, शहरियार को एडमिट कर लूँ मैं जरा जी। The water from the clothes and paddle disappeared in the air in the form of water vapor. जी, यही वजह है कि कुछ ही टाइम के बाद पैडल में जो वाटर है और गीले कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि सराउंडिंग से हीट लेते हैं कॉल्ड वाटर एंड दे चेंज इनटू वाटर वेपर। वाटर वेपर में चेंज होते हैं। और वाटर वेपर क्या है? एक प्रोसेस है, एवोपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर, लिक्विड, सॉलिड, ये चीजें आती हैं, ये तीनों स्ट्रेट हैं और ये एवोपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर बन के हवा में। ठीक है, क्लियर हुआ सवेरा? गुड। See the next slide. The change of a liquid in a gas, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। इट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज एवोपोरेशन, जिसे लास्ट यूनिट में, लास्ट वीक में, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी बॉइल होना शुरू होता है, दे स्टार्ट टू चेंज इन स्ट्रीम, इन गैस, गैस में चेंज हो जाता है। तो वो भी क्या थी? एवोपोरेशन। ठीक है, इसका बॉइलिंग जब स्टार्ट होता है, जब वाटर चेंज होने शुरू हो जाता है गैस में, एवोपोरेशन में, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। हाउ quickly evaporation take place is known as the rate of evaporation. Let us find out what affects the rate of evaporation. अच्छा, चलिए अब हम देखते हैं। ये देखिए, एक नीचे पिक्चर दी हुई है, ये बड़ी प्यारी पिक्चर है, इसे गौर से देखिए। इट्स ऑल अबाउट evaporation। ये जो पानी चेंज हो रहा है एवोपोरेशन में, स्ट्रीम में, बिकॉज ऑफ द वेदर, वेदर से हीट गेन कर रहा है और दोबारा से बारिश भी हो जाती है, ये वाटर साइकिल आ जाता है। लेकिन ये जो आपने स्ट्रीम देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट सी निकल रही है, ये वाटर लिक्विड चेंज इनटू एवोपोरेशन। इसके लिए इसे चूल्हे पे चढ़ाना भी जरूरी नहीं है। दे गेट एनर्जी, दे गेट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग से भी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखिए, बारिश हुई, पानी खड़ा हुआ, 2 दिन बाद देखा ड्राई हो गया, कहाँ गया? एवोपोरेट हो गया।
एवोपोरेट होने के लिए उसे हीट कहाँ से मिली, 100 डिग्री टेम्परेचर कहाँ से आया उसके पास, एनवायरमेंट से, सराउंडिंग से, ठीक है। डू वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर। अब हम यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। डू गेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट डे और कूल डे। कौन से प्रोसेस में, कौन सी तरीके से क्लोथ्स जो हैं वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे, हॉट डे में या कूल डे में? ऑब्वियसली हॉट डे। वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट डे रादर देन कोल्ड डे। ठंडक की वजह से उसे हीट नहीं मिलेगी। जब सराउंडिंग में हीट नहीं है तो एवोपोरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। आप देखिए सर्दियों में जब आपके घर में मेड होती हैं या आपकी मामा जो हैं वो कपड़े धोती हैं, क्लोथ्स वॉशिंग करती हैं, तो सर्दियों में 2-2 दिन, पूरा पूरा दिन कपड़े टंगे रहते हैं, धूप का इंतजार करते हैं, जिस साइड धूप आ रही है वहां कपड़े कर रहे हैं। इज इट ट्रू? ये सही है? क्यों? इसकी वजह ये है कि हीट कंज्यूम नहीं हो रही, हीट नहीं मिल रही कपड़ों को, वाटर को, इसकी वजह से वो ड्राई नहीं हो रहे और एवोपोरेशन नहीं हो रही। एवोपोरेशन के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर हीट हो। हीट कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द सराउंडिंग। दे गेट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, right? So wet clothes dry faster on a hot day rather than a cold day. cold day की निस्बत hot day में कपड़े जल्दी ड्राई होंगे। सवेरा, इज इट क्लियर? शरियार, क्लियर? Yes, see the next slide. Hot day, cold day. Next, do wet clothes dry faster on a windy or a day when the air is still? हाँ जी, हमसे पूछे जा रहा है कि कौन से दिन जो है जब हवा चल रही होगी ज्यादा तब ड्राई हो रहे होंगे, या हवा रुकी हुई होगी तब कपड़े ड्राई होंगे? कॉमन सेंस है, जब हवा चल रही है तो एवोपोरेशन का प्रोसेस इजीली हो जाएगा और कपड़े आराम से सूख जाएंगे। क्लोथ्स ड्राई फास्टर ड्यूरिंग विंडी डे। देखिए तो यही बता रहे हैं कि जब हवा चल रही होगी तो कपड़े बड़े जल्दी से आसानी से सूख जाएंगे रादर देन अ सनी डे, बनिस्बत इसके कि बहुत सन निकला। बिकॉज विंड हेल्प्स इट फास्ट। विंड मदद करती है फास्ट एवोपोरेशन। विंड और प्लस हीट, दो चीजें इकट्ठी मिल जाएंगी तो क्या होगा? कपड़े जल्दी ड्राई हो जाएंगे। एक तो विंड, यूं यूं हवा है जो कि कपड़ों को सुखा रही है, दूसरा हीट भी है, हीट से एवोपोरेशन हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ हीट है तो भी उसकी स्लो हो जाएगा प्रोसेस थोड़ा सा, ठीक है, अगर हवा रुकी हुई होगी। जी, सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें कहते हैं डू वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर व्हेन द क्लोथ्स आर स्प्रेड आउट और व्हेन दे आर फोल्डेड। अगर कपड़ों को स्प्रेड करके, खुला करके टांगा जाए या यूं रोल मोल करके टांगा जाए तो कौन से कपड़े पहले ड्राई होंगे? ऑब्वियसली जो क्लोथ स्प्रेड किए हुए, खुले करके टांगे हुए वो होंगे। Wet clothes are dried faster when they are spread out because more evaporation take place. So when we get clothes are spread out, more evaporation take place as a larger number of molecules evaporate and they are dry faster. अगर कपड़ों को खुला करके टांगेंगे तो एवोपोरेशन का प्रोसेस जो है हीट, विंड और नॉट ऑफ क्लोजनेस, ये सारे प्लस पॉइंट्स की वजह से वो कपड़े जल्दी ड्राई हो जाएंगे बानिस्बत उनके जब हम एक के ऊपर एक कपड़ा टांगे या कपड़ों को फोल्ड करके टांगना शुरू करें सुखाने के लिए, तो वो देर लेंगे। वो देर की वजह क्या है कि वहां पे एवोपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा।
Can you tell which factor or variable is changed in each pair of diagram? The variable that was yes, दुनिया अपना mic off कीजिए बेटा. जी, the variable that was changed was the one that was being investigated. यही थे हमारे answers जिन्हें हम ढूंढ रहे थे. These all are the answers which we are investigate at the starting of our topic. यही वो सारे आंसर्स थे, 3 4 5 6 क्वेश्चंस जिन्हें हम स्टडी कर रहे थे और ये सारे हमारे सामने आ गए. हमने इन्हें क्लियर भी कर लिया, इन्वेस्टिगेट भी कर लिया और सब कुछ क्लियर हो. Each variable that was changed affect the rate of evaporation. हर आंसर में, हर रेट्स में हमें ये मिला कि एवोपरेशन का प्रोसेस या तो स्लो या फास्टर है. Wet clothes dry faster when they are spread out to dry on a hot and windy day. देखिए मैंने अच्छे तरीके से आंसर्स के साथ पीछे तीनों डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर दिया. This is because high surrounding temperature, बिल्कुल सही है. The rate of evaporation depends on the following factor. ये following factor आपको पता होने चाहिए. The temperature of the surrounding, पहले में क्या था? Hot day में और cold day में temperature लिया था कहाँ से? Heat ली थी surrounding से. The presence of wind, हवा का चलना. The surface area, surface area की वजह से वहाँ पे heat भी है और wind भी. Humidity. Humidity कहते हैं नमी को. Sometimes you feel very humidity in the environment. Oh my God, feel चिपचिपाहट हो रही होती है. Like that, sweat हो रहा होता है और लग रहा होता है कि गीला गीला चिपचिपाहट सी हो रही है हर जगह पर. अजीब अजीब सी humidity हो रही है. And at that time you also feel difficult to breathe. ऐसा मेरे साथ होता है कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो आई फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ. मुझे थोड़ा सा सांस लेना मुश्किल लग रहा होता है. Is another factor that affects the rate of evaporation. ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से एवोपरेशन पे फर्क पड़ता है. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. ह्यूमिडिटी होती ही वाटर वेपर की वजह से है. Water evaporates quickly when humidity is low. Water evaporates quickly. Water vapor का process बहुत तेजी से होता है जब humidity low हो. जब humidity high होती है, ज़्यादा होती है humidity, आपको गर्मी और चिपचिपाहट ज़्यादा फील हो रही होती है, तो आप देखें कि सामने पड़ा हुआ पानी जो है ना वो बहुत देर बाद ड्राई होगा. क्योंकि जब ह्यूमिडिटी लो होगी तो एवोपरेशन हाई होगी. जब ह्यूमिडिटी हाई होगी तो एवोपरेशन का प्रोसेस, आबी बुखारात बनने का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए. राइट? सवेरा क्लियर? शरियार? दुनिया क्लियर? गुड. अब ये लास्ट देखिए. वाटर एग्जिस्ट ऑन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस. वाटर 3 स्टेट्स पे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब यहाँ से सॉलिड टू लिक्विड का प्रोसेस जो है, सी फ्रॉम हियर, सॉलिड टू लिक्विड के प्रोसेस में फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉलिड से लिक्विड पे जा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. कंडेंसेशन के प्रोसेस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग, गैस. ठीक है, कंडेंसेशन तो होती है ना जो आप शीशे पे देख लेते हो, ग्लास पे देख लेते हो, पानी के वाटर वेपर्स और शबनम जो गिरी होती है पत्तों पर सुबह के टाइम वो. एवोपरेशन बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ये चीजें याद रखने की. टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग से टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ विंड, विंड का होना, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी. इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक. अभी दुनिया और शहरियार आए हैं, मैं यहीं से रिवाइंड कर देती हूँ. सवेरा, एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू? गुड. ह्यूमिडिटी समझ आया दुनिया, शहरियार? ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा में जो नमी होती है ना एनवायरनमेंट में, जो आपको समटाइम चिपचिपाहट फील कर रही होती है, गीला गीला फील कर रही होती है, दैट इज ह्यूमिडिटी. और ह्यूमिडिटी जब लो होती है तो एवोपरेशन का रेट हाई होता है, और जब ह्यूमिडिटी
हाई होती है तो एवोपोरेशन का रेट लो होता है। ये हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें क्लोथ्स को बताया था कि वो विंड में, हवा में जल्दी सूख जाएंगे, धूप में, हीट में। ये वो प्रोसेसेस थे जो एवोपोरेट कर रहे होते हैं, पानी को जल्दी जल्दी से ड्राई कर रहे होते हैं। ये देखिए एवोपोरेशन की पिक्चर देखिए, जब वाटर जो है, लिक्विड जो है, वो गैस बन रहा है, एवोपोरेट होके हवा में मुंतकिल हो रहा है। ड्राई क्लोथ्स कैसे होते हैं और जमीन पे जो पानी पड़ा होता है वो ड्राई कैसे होता है, वो सब होता है एवोपोरेशन की वजह से। एवोपोरेट होता है, आबी बुखारात बन के एवोपोरेट होके हवा में चला जाता है। एवोपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर चेंज हो जाता है, एवोपोरेशन एवोपोरेट होता है। ये हमारे प्रीवियस टॉपिक्स थे, ठीक है? एवरीथिंग इज क्लियर? कैन यू कम ऑन स्क्रीन? स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। यस, नाउ अपने स्पीकर माइक ऑन कीजिए, बट घर वालों की आवाज नहीं आनी चाहिए प्लीज, शोर नहीं। सवेरा, सबसे पहले तो आप मुझे क्लियर करें, बिकॉज आपने पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किया है। एवोपोरेशन क्या होती है? एवोपोरेशन उस चीज को कहते हैं जैसे कि टीचर पानी वाटर वेपर बन के चले जाता है ना ऊपर, उसको ये वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो एवोपोरेट होके हवा में मुंतकिल हो जाता है। और फिर इसका एक और प्रोसेस भी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अच्छा, इसका कोई एक्सपेरिमेंट बताइए। हमने अभी भी देखा कि एवोपोरेशन होती कैसे है। कपड़े धोइए, उसे टांगे दर्जे के ऊपर, एक्सपेरिमेंट करके मुझे बताइए। सवेरा, आई एम आस्किंग टू यू। कपड़े धोए, आधे कपड़े डाल दिए आपने हॉट डे में, आधे कोल्ड डे में, तो कौन से पहले ड्राई होंगे? इसलिए कि एवोपोरेशन का प्रोसेस में सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से वाटर ने सराउंडिंग, और एवोपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और कपड़े ड्राई। अच्छा, अब आप मुझे बताइए दोनों कि ह्यूमिडिटी क्या होती है? हीट हीट नहीं, हीट में यस ह्यूमिडिटी क्या होती है? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? टीचर आप क्या कह रही हैं? टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। ह्यूमिडिटी, ओके, आप बोलिए, सवेरा आपको आ रही है? प्रियंका, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आप बताइए, ह्यूमिडिटी का बताइए। अभी मैंने बताया था ना, समटाइम यू फील वेट और चिपचिपाहट सी फील हो रही होती है, दैट इज ह्यूमिडिटी। वो ह्यूमिडिटी लो होती है तो एवोपोरेशन हाई होती है। आप बताइए सवेरा, ह्यूमिडिटी का बताइए। टीचर जब ह्यूमिडिटी जब कम होती है, जब टीचर गर्मी टीचर जब ज्यादा होती है तब ह्यूमिडिटी कम होती है, और टीचर जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तब टीचर गर्मी कम होती है। ठीक है, सिर्फ इतना समझिए कि ह्यूमिडिटी जो है वो, उसका टेम्परेचर, उसका रेट लो होता है तो एवोपोरेशन हाई होती है। जब एवोपोरेशन लो होती है तो ह्यूमिडिटी हाई होती है। और कोई क्वेश्चन है? कोई चीज पूछनी है? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना है सवेरा? यस टीचर। एनी क्वेश्चन? नो। नो? डिड यू एंजॉय?
मजा आया है साइंस पढ़ के कि नहीं आया ईद के बाद? टीचर बहुत बहुत, दैट्स ग्रेट। अच्छा चलो अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ईद कैसे सेलिब्रेट की? ईद कैसे सेलिब्रेट की सवेरा आपने? टीचर मैंने कल रात को बारबेक्यू करा था। बारबेक्यू किया था, दैट्स ग्रेट। चिकन का या मटन का या बीफ का? यस चिकन, मटन या बीफ बारबेक्यू किया था? मीट किसका मीट था? बकरे का या बड़े वाले जानवर का? काऊ का। काऊ का। अच्छा अच्छा, अब आपका मैं माइक ऑफ करती हूँ, मैं दूसरे बच्चों से बात करती हूँ। जी शहरियार, शहरियार आपकी ईद कैसी गुजरी? शहरियार माइक ऑन कीजिए अपना। शहरियार, क्या? शहरियार यस मिस आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत ही अच्छी। कुर्बानी की थी? नहीं की थी? नो मिस। चलो कोई बात नहीं, enjoy कीजिएगा। अच्छा जी, अब मुझे बताइए दुनिया, दुनिया आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। अब आपको सही आवाज आ रही है? बेटा जब आप यस क्वेश्चन रेज करती हो ना तो फिर आपको मेरी आवाज नहीं आती है। टीचर वो शहरियार का माइक ऑन था तो बहुत कट कट हो रहा था, फिर आपकी आवाज सही आई। अच्छा चले, आप बताइए कुर्बानी की थी? यस टीचर। तो बकरा किया था? गोट? नो काऊ। अच्छा, तो अपनी काऊ के साथ आपने अपनी पिक्चर्स नहीं बनाई? नो टीचर। अच्छा क्यों? टीचर वो दादी घर होती। अच्छा सवेरा आप कुछ कहना चाह रही हैं? टीचर परसों मेरे पापा टैबलेट लाए थे क्या और लाए? उसमें टैबलेट टैबलेट न्यू। यस आपके लिए? उसी पे बात कर रही हैं यस अपने टैबलेट पे? Congratulations, your father is very थैंक kind to you कि उन्होंने आपको टैबलेट लाके दिया। That's great। यू। बहुत अच्छी। और whatever anything more? और कुछ शेयर करना है आप लोगों ने? यस टीचर। और कुछ शेयर करना चाहते हैं ईद से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, या फिर हम वाइंड अप करें? बातें करनी है? अच्छा चलिए ठीक है। और क्या करें, अभी जो मैंने पढ़ाया है वो थोड़े बहुत से स्टडी करें। मैं शाम तक आप लोगों के साथ होमवर्क शेयर कर दूँगी, ठीक है? ये होमवर्क थोड़ा सा मुझे प्लान करना है ना, ड्यू टू द ईद आई वाज आल्सो वेरी स्टक, बहुत बिजी थी, मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी था। तो शाम तक मैं आप लोगों के साथ होमवर्क शेयर करूंगी, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाय। अल्लाह हाफ़िज़।